अच्छा जी, एडवांस डीप लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें हम केरस फंक्शनल एपीआई देखेंगे और कॉल बैक्स देखेंगे। टेंसर बोर्ड विजुअलाइजेशन है। इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स। अच्छा, this chapter explores a number of powerful tools that will bring you to closer being able to develop state-of-the-art model on difficult problems using the Keras functional API. You can build graph-like models. अब आप कहेंगे विजुअल जो है ना, आप मॉडल्स को विजुअली देख सकेंगे, यानी कि ड्रॉ करेगा आपके लिए। शेयर अ लेयर अक्रॉस डिफरेंट इनपुट्स। एक लेयर को आप मुख्तलिफ इनपुट्स के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। जैसे अब तक हम अपना सीक्वेंस वो देखते रहे थे ना, सीक्वेंस लेयर। अब सीक्वेंस में नहीं, अब हम डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर शेयर कर सकेंगे, ठीक है, जो कि सीक्वेंस में नहीं रहेगा। एंड यूज करस जस्ट लाइक पाइथन फंक्शंस। Keras callbacks and the TensorBoard browser-based visualization tools let you monitor models during the training. अब आपके यानी कि जो callbacks हैं और TensorBoard browser-based, यानी कि आपके ब्राउज़र में एक आपका ग्राफिकल एक आपके सामने आ जाएगा। जो जो मॉडल आप डिफाइन करेंगे ना, उसकी पिक्चर या एक ग्राफिक फॉर्म में आ जाएगा, और उसको आप ट्रेनिंग के दौरान भी देख सकते हैं, ठीक है, कि ट्रेनिंग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। We will also discuss several other best practices, including batch normalization, residual connections, hyperparameter optimization, and model ensembling. अब हम देखते हैं जी कि फंक्शनल एपीआई की तरफ देखते हैं। Until now, all the neural network introduced in this book have been implemented using the sequential model. अब तक हम sequential model देखते रहे थे, यानी कि एक मॉडल की आउटपुट या दूसरे की इनपुट बनती है, फिर दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट बनती है, इस तरह फ्लो यानी कि सीक्वेंस के अंदर वो चलते चले जाते हैं। The sequential model makes an assumption that the network has exactly one input and exactly one output, and that it consists of a linear stack of layers. तो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? The sequential model makes an assumption that the network has exactly one input and exactly one output. एक इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी, and that it consists of a linear stack of layer. आपके sequential model के अंदर एक इनपुट और एक आउटपुट है, और लीनियरली आपके मॉडल स्टैक हुए हुए हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरा मॉडल स्टैक हुआ हुआ है। दिस इज कॉमनली वेरीफाइड लेयर्स जो है ना वो स्टैक हुई हुई हैं। दिस इज कॉमनली वेरीफाइड एजम्पशन। द कॉन्फ़िगरेशन इज सो कॉमन दैट वी हैव बीन एबल टू cover many topics and practical application in these pages so far using the sequential model class. आपके sequential model देखो, अब तक चैप्टर 2 से लेके अब तक sequentially चलता आ रहा था, ठीक है। But this set of assumptions is too inflexible in a number of cases. Some networks require several independent inputs, others require multiple outputs, and some networks have internal branching between layers that makes them look like graphs of layers rather than linear stack of layers. तो ये वही बात, आपके मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज होंगे, मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेज, इनपुट्स आउटपुट्स, सेवरल इनपुट। आपका जो है वो लीनियर नहीं रहता, लीनियर स्टैक नहीं रहेगा, तो एक ग्राफ की शक्ल में आ जाएगा। Some tasks, for instance, require multi-modal inputs. They merge data coming from different input sources, processing each type of data using different kind of neural layers. Imagine a deep learning model trying to predict the most likely market price of a second-hand piece of clothing using the following inputs. User provided metadata such as items, brand, age, and so on, and a user provided text description and a picture of the item. If you had only the metadata, you had only the metadata available, you could one hot encode it and use densely connected network to predict the price. If you had only the text description available, you could use the RNN or 1D convent. If you had only the picture, you could use the 2D convent. अब आपके पास ये मुख्तलिफ का डाटा आ रहा है, जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ एक किस्म का डाटा होता तो आप जैसे कि अब इसने बताया कि कपड़े की जो मार्केट है, कपड़े की मार्केट प्राइस जो है, आपने अगर सेकंड हैंड क्या बोलते हैं उसे, अ, ये
Imagine a deep learning model trying to predict most likely the market price of a second hand piece of clothing. ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास क्या क्या डेटा हो सकता था। एक हो सकता था मिसाल के तौर पे उसकी ब्रांड कौन सी है, कितने साल यूज़ हुआ हुआ है, एंड सो ऑन। और और यूज़र की यानी कि जैसे कि डिस्क्रिप्शन है कि कपड़ा जनाब कौन सी फैब्रिक क्या है, इसका कलर क्या है, क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरह की कोई उसके टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन जैसे दी हुई होती है। या तीसरे किस्म का डाटा हो सकता है उसके पिक्चर्स कपड़े की दे देते हैं। तो ये तीन किस्म के डाटाज जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के डाटाज हैं, और मुख्तलिफ किस्म की डाटाज को हम डिफरेंट टेक्निक्स से हैंडल करते हैं सेपरेटली, अलग-अलग। ठीक है, तो उसमें क्या टेक्निक्स हो सकती थी। अगर सिर्फ मेटा डाटा अवेलेबल होता, जैसे मेटा डाटा के यानी कि आपके पास उसकी कपड़े की एज क्या है एंड सो ऑन। ठीक है, तो सर मेटा मेटा डाटा, डेटा न्यूमेरिक होगा? हाँ जी, ये बिल्कुल न्यूमेरिक होगा ना। मतलब आप उसको वन हॉट एनकोड कर लेंगे ना भाई। ब्रांड है, अगर मिसाल के तौर पे मतलब ज़ारा की अगर ये ब्रांड है एज भी तो वन न्यूमेरिक है। है। हाँ। हाँ, मतलब आपकी हाँ नाइकी मतलब की है ये तो सारा न्यूमेरिक में कहलाएगा ना मेटा डेटा? हाँ, वन हॉट एनकोड करना होगा ना उसको, आप जैसे ये बता रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा कि वो आप उसको वन हॉट एनकोड करेंगे और उसको डेंस नेटवर्क से गुजार के आप उसकी प्राइस को प्रिडिक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये एक एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट डाटा होता, text description is available, you could use RNN और 1D कॉन्वेंट। तो जैसे कि आपके पास टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर हमने अभी 1D कॉन्वेंट या RNN को यूज़ करके हम उसको मतलब प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसके सेंटीमेंट एनालिसिस जैसे कर लें, गुड और बैड। इफ़ यू हैड ओनली द पिक्चर यू कुड यूज़ द T2D कन्वेंट। अब पिक्चर्स डाटा है तो कपड़े की क्वालिटी जो है तो वो आप पिक्चर्स के ज़रिए, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए वो आप उसको करके उसे तीन तरीके से हो सकता था। बट हाउ कैन यू यूज़ ऑल थ्री एट द सेम टाइम। मतलब आप अगर चाहें कि हम तीनों तीनों किस्म की इंफॉर्मेशन को एट द सेम टाइम हम यूज़ कर सकें। ठीक है, एक ही मॉडल के अंदर यूज़ कर सकें। A naive approach would be to train three separate models and then do the weighted average of their predictions। ठीक है, पहले आप एक एक अलग अलग मॉडल, हर मॉडल को अलग कर लें, तीनों तीनों किस्म के मॉडल को अलग अलग ट्रेनिंग करके और उनकी वेटेड एवरेज निकाल के आप उनसे प्रोडिक्शन ले लें। ठीक, मिसाल के तौर पे इसकी आपको पता है कि आपके जो आउटपुट लेयर है उसके ऊपर आपकी ना वो आती है, प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, तो आपकी मिसाल के तौर पे एक एक मॉडल की आई 0.3, एक मॉडल की आई 0.6, एक की आई 0.7, आपने उनको सम करके उसकी एवरेज कर ली, तो वो आपका जो है ना प्रोडिक्शन निकल आई, तीन की एवरेज आ गई। ठीक है, बट this may be suboptimal because the information extracted by the models may be redundant. A better way is to jointly learn a more accurate model of the data by using a model that can see all available input modalities simultaneously। तो हमने एक जॉइंट मॉडल ट्रेन करना है जिसके अंदर सारी की सारी डेटा को एकदम से देख सके, एकदम से उसके ऊपर ट्रेन हो सके। अ मॉडल विथ थ्री इनपुट ब्रांचेस। तो आपके पास तीन किस्म की आपके पास आ गई, एक मेटा डेटा आ गया, उसमें डेंस आ गया, एक आरएनएन आ गया, एक जो है पिक्चर डेटा कॉन्वेंट आ गया। उसको आपने जॉइंटली यहाँ पे ट्रेन किया साइमल्टेनियसली, और उन दोनों को मर्ज करके फिर आपके पास एक प्रेडिक्शन आ गई। तो इस तरह से हम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। Similarly, some tasks need to predict multiple target attributes of the input data। तो some tasks need to predict multiple target attributes of input data। तो हमारे पास कुछ टास्क ऐसे होंगे जिसके अंदर हमें इनपुट डेटा दे के हमने मल्टीपल टारगेट्स अचीव करने होंगे, जैसे ये है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इसको। गिवन द टेक्स्ट ऑफ द नॉवल और शॉर्ट स्टोरी, हमारे पास नॉवल का टेक्स्ट दिया हुआ है या उसकी शॉर्ट स्टोरी दी हुई है।
You might want to automatically classify it by genre, such as romance or thriller, but also predict the approximate date it was written. यार by the way मुझे भी इसका सही तलफ़ुज़ पता नहीं है, फिर वो ये ना कहना आप लोग यार ये क्या पढ़ा है आपने. Of course you could train two separate models. अब आप दो separate model train करेंगे, one of the genre and one of the date, but because these attributes aren't statistically independent, you could build a better model by learning a jointly predict both genre and date at the same time. Such a joint model would then have two outputs or heads. ठीक है. Due to see figure 7.3, due to correlation between genre and date, knowing the date of the novel would help the model learn rich accurate representation of the space of the novel genre and vice versa. तो इसका जब हम क्या करेंगे, हम इसको जब कोरिलेट करेंगे इन दोनों पैरामीटर्स को, ठीक है, तो उसके सर उसकी एक्चुअली एक स्टोरी दी जाएगी, हम्म एक स्टोरी दी जाएगी, उस स्टोरी को जब हम मशीन में फीड करेंगे तो हमें वो जेनर ये बताएगा कि मतलब ये स्टोरी किस तरह की है, रोमांस है, थ्रिल है, और सेकंड जो टारगेट हमारा निकलेगा वो ये निकलेगा, उसका रिग्रेशन, उसकी डेट वगैरह निकलेगी. नहीं, डेट डेट रिग्रेसर तो वो हमें दिया हुआ है ना, ये हमारे पास दो इनपुट्स है ना. एक हमें दिया हुआ है कि नॉवल की शॉर्ट स्टोरी दी हुई है ना, तो हमने उसको क्या क्लासिफाई करना है. हाँ ठीक है, कि इसका जो है ना जेनर क्या है, रोमांस है या थ्रिलर है, ठीक है, और हमने उसकी डेट भी जी प्रेडिक्ट करनी है जो कि अप्रोक्सीमेट डेट होगी. ऐसे ही है जी, ना, जो उसमें, दो दो हाँ चीजें हमने जी, प्रेडिक्ट ये करनी है. टेक्स्ट, ये दोनों चीजें, हाँ ये दो चीजें, मतलब एक चीज दी जाएगी और इसके दो मतलब इसके दो आउटपुट निकलेंगे. हम्म. ठीक है. अब ऑफ कोर्स यू कुड ट्रेन टू सेपरेट मॉडल. अब कह रहा है कि दो सेपरेट मॉडल पहले आप ट्रेन कर सकते थे ना, ट्रेन करके उनको आप कंबाइन कर देते, लेकिन क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं, आपकी जो स्टोरी है या जो टेक्स्ट है और जो आपका डेट है, वो स्टैटिस्टिकली जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में वो डिपेंडेंट हैं. ठीक है. You could build a better model by learning to jointly predict both genre and date at the same time. ठीक है. तो आपके पास जो है, आपने यानी कि जॉइंट मॉडल जो है ना आपने ट्रेन करना है. ठीक है. जॉइंट मॉडल ट्रेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना आपस में कोरिलेटेड हैं या आपस में डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. Such a joint model would then have two outputs. तो आपके पास दो outputs आएंगी, outputs या heads. ठीक है. Due to correlation between genre and date, knowing the date of a novel would help the model learn rich. ठीक है. तो accurate representation of the space of novel genres and vice versa, यानी कि डेट की वजह से वो जेनरे को ज़्यादा अच्छा यानी कि लर्न कर लेगा, और जेनरे की वजह से वो डेट को ज़्यादा अच्छा लर्न कर लेगा, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को एड कर रहे होंगे. ठीक. एडिशनली मैनी रिसेंटली डेवलप्ड न्यूरल आर्किटेक्चर रिक्वायर नॉन लीनियर नेटवर्क टपोलॉजी. तो आपके पास नॉन लीनियर नेटवर्क टपोलॉजीज हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर एज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स. यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे कि लीनियर लीनियर स्टैक ऑफ द लेयर्स, यानी कि एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर चौथी लेयर, उस तरह नहीं है. ये आपके पास जो है ग्राफिक ग्राफिक एसाइक्लिक ग्राफिक्स, उसमें एसाइक्लिक ग्राफ्स आएंगे. ठीक है. जिसमें आपके पास फीडबैक आ रही होंगी, यानी कि द इंसेप्शन फैमिली ऑफ द नेटवर्क डेवलप्ड बाय एट गूगल फॉर इंस्टेंस रिलाइज ऑन इंसेप्शन मॉडल्स जो हैं, इंसेप्शन मॉड्यूल्स, where the input is processed by several parallel convolution branches whose outputs are then merged back into the single tensor. See figure 7.4. ये जी आपकी फिगर 7.4. ये 7.4 में जैसे इनपुट आ रही है, यहाँ से आपके पास
ये है आपका एन इंसेप्शन मॉड्यूल सब ग्राफ ऑफ लेयर्स विद सेवरल पैरेलल कन्वोल्यूशन ब्रांचेस। तो आपके पास बहुत सारे कन्वोल्यूशन ब्रांचेस आ रही हैं, इनपुट सेम है और ये मुख्तलिफ कन्वोल्यूशन ब्रांचेस से गुजर के डाटा आपका, फिर आप इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं डाटा को। There is also the recent trend of adding residual connection to a model which started with the RESTnet family of the network. अब दो चीज़ें हैं आपके पास, एक इंसेप्शन मॉड्यूल्स हैं, दूसरा RESTnet family of networks. Developed at Microsoft, a residual connection consists of re-injecting the previous representation into the downstream flow of the data by adding the past output tensor to a later output tensor, which helps prevent information loss along the data processing flow. There are many other examples of such graph-like networks. अब आपके पास जो Microsoft ने बनाया है वो है RESTnet. RESTnet के अंदर जो है ये रेजिडुअल कनेक्शन जो है आपका जाके इधर उसमें ऐड हो जाता है। रेजिडुअल कनेक्शन री इंजेक्शन, तो आपके पास जो है यहाँ से ये रेजिडुअल कनेक्शन री इंजेक्ट हो रहा है यहाँ इस लेयर के ऊपर। Reinjection of prior information downstream via feature map addition. These three important use cases, multi input models, आपके पास एक तो हो गया मल्टी इनपुट मॉडल्स हो गए, फिर मल्टी आउटपुट मॉडल्स हो गए, और एंड ग्राफ लाइक मॉडल्स आरंट पॉसिबल व्हेन यूजिंग ओनली सिक्वेंशियल मॉडल। तो सिक्वेंशियल मॉडल को यूज करते हुए हमारे पास ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्वेंशियल मॉडल हमेशा ऐसे होता है 1 2 3 ऐसे। ये अब ये आपका यूँ समझिए कि एक सिक्वेंशियल मॉडल यहाँ तक, लेकिन अगर आप सबकी बात करें तो ये इस तरह एक पैरेलल में चल रहे हैं सारे मॉडल्स, तो ये एक सिक्वेंशियल मॉडल नहीं है। तो सिक्वेंशियल मॉडल में हम इस तरह की टोपोलॉजी अचीव नहीं कर सकते। But there is another far more general and flexible way to use Keras, the functional API. This section explains in detail what it is, what it can do, and how it is used. Introduction to functional API. In the functional API, you directly manipulate tensors and you use layers as functions that take tensors and returns tensors. Hence, the name is functional API. तो आपके पास ये आ गया जिस तरीके से आपने एक इनपुट टेंसर दिया, ठीक है, और उसमें इनपुट ये एक आपका टेंसर हो गया, शेप ये हो गई। देन आपने क्या किया, डेंस इज इक्वल टू लेयर्स डॉट डेंस, ये आपका एक फंक्शन बन गया लेयर्स डॉट डेंस ये। तो आउटपुट क्या होगी, अब डेंस को जो है आपने इनपुट दी, आपका जो इनपुट टेंसर था उसको एज अ इनपुट पास करवा दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो है a layer may be called on a tensor and it returns a tensor, ठीक है। तो ये चीज़, let's start with a minimal example that shows side by side a simple sequential model and equivalent in the functional API. तो हमारे पास मेरा ख्याल में ये हमें दिखाएगा ये पहले सिक्वेंशियल दिखाएगा और उसके बाद उसका फंक्शनल इक्विवेलेंट दिखाएगा, ठीक। आपके पास ये सिक्वेंशियल हो गया, सिक्वेंशियल मॉडल इक्वल सिक्वेंशियल, और मॉडल डॉट ऐड मतलब आप उसमें लेयर ऐड करते चले गए। अब इसका फंक्शनल इनपुट फंक्शनल इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले आपका जो है जो आपकी ये इनपुट है इधर, ठीक है, ये इनपुट आपका इनपुट टेंसर इनपुट शेप, ठीक है, 64 ये आ गई। उसके बाद x इज इक्वल टू लेयर्स डॉट डेंस, ये एक पहली लेयर आ गई, और उसका इसकी जो हमने यहाँ पे जो इनपुट देनी थी इधर, तो वो हमने एज अ पैरामीटर पास करा दी। सो इनपुट टेंसर एज अ पैरामीटर पास कराते हैं। आपको पता है कि फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो उसके लिए हम एक इनपुट देते हैं पैरामीटर, ठीक है, या उसका आर्ग्यूमेंट फंक्शन का आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट जो है हमें इनपुट टेंसर हमने इसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास करा दिया, तो इसको इसलिए फंक्शनल एपीआई कहते हैं। तो ये 64 क्यों डाला है कहाँ पे, ये वाला इनपुट शेप में? इनपुट शेप जैसे ये नहीं इस, हाँ
सर मुझे हमेशा जो प्रॉब्लम आता है ना, मतलब मैं टेक्स्ट भी सब कुछ सारा काम कर लेती हूँ, मगर ये जो हम फीड करते हैं ना डेटा मॉडल, इसमें सिक्वेंशियल में या एपीआई में, मुझे इसमें प्रॉब्लम आता है कि हम कैसे चूज करेंगे कि डेटा किस तरह से उठा के इसमें फीड करना है। आपको पता है ना, डेंस डेंस का जो डेटा है हम्म, वो हमेशा एक टेंसर में लेता है। जी। हाँ जी। एक मतलब वन, एक आप टेंसर कह रहे हैं, टेंसर मीन मतलब वन डायमेंशनल। हाँ जी, ठीक है, वो टेंसर में वन फीड। डायमेंशनल मीन मतलब वो मैट्रिक्स नहीं होगा फिर। हाँ, मतलब ये है कि वो जो है सिंगल वेक्टर आ रहा होगा, ठीक है, सिंगल सिंगल वेक्टर। वेक्टर आ रहा होगा, मतलब जब, मगर हम जो जो अपना डेटा सॉर्ट करते हैं उसके बाद तो उसको हम नमपाई में डालते हैं, तो वो तो हम्म मैट्रिक्स में जाता है। हम्म मैट्रिक्स के बाद फिर उस डेटे को हम, मतलब जब हम फीड करते हैं, अगर डेंस लेयर में फीड कर रहे हैं, तो वो मतलब उसको मैट्रिक्स में लेके जाएंगे कि अब वो वेक्टर में जाएगा। देखें, आप अगर कॉल बैक करें थर्ड चैप्टर मुझे को, ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है। सेकंड चैप्टर, सेकंड। सेकंड तो सर मैंने अभी पढ़ा है सुबह में, मतलब वही टेंसर पर ही है सारा ये सब। और टेंसर में तो यही है कि वो जो वन डायमेंशन है वो वेक्टर है, और जो टू डायमेंशंस है वो मैट्रिक्स है। अब जो कंफ्यूजन ये होती है कि जब हम मॉडल के अंदर डेटा फीड करते हैं, जो हमारा रॉ डेटा था उसको हमने सॉर्ट कर लिया, हमने मतलब उसका सारा उसको मतलब बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया, टेंसर बना लिया उसके, टेंसर हम्म जाएगा किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म्स में कि मैट्रिक या वेक्टर फॉर्म में जाएगा मॉडल के अंदर। ये देखें, ये देखें, ये देखें ना, ये आपका जो है इनपुट शेप ये का है 28 मल्टीप्लाई 28, कितने थे ये 784। तो आपका एक 780, एक आपका इमेज है ना, जी। इमेज आपका ऐसा है, 28 बाई 28 पिक्सल्स का है ना, हाँ, जिसकी विड्थ ट्वेंटी एट और बाई हाइट है ये। 28 का है ना, लेकिन यहाँ पे जब वो आएगा तो वो 28 मल्टीप्लाई 28 इनके 784 पिक्सल को एक उसका वेक्टर वेक्टर टेंसर बना के ना उसका, मतलब फिर वो इसमें हाँ, आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब वो टेंसर में जाएगा, मतलब वो जो पिक्चर है हाँ, वो अब टेंसर्स में जाएगी, और पूरी एक। क्योंकि ये ग्रे स्केल में है हम्म इसलिए चैनल्स में नहीं जाएगी। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, डेंस डेंस में तो ये होता है ना, लेकिन वो आपके कॉन्वोल्यूशन में जो आता है तो वो फिर 2D या 3D उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे बस आपके। सिंपली मतलब आप मतलब मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका आंसर ये है कि जब भी हम मॉडल में डेटा फीड करेंगे तो वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में जाएगा, डेंस मैट्रिक्स में, फॉर्म में नहीं जाएगा। डेंस में ये डेंस लेयर सीक्वेंशियल डेटा में। डेंस लेयर में, बाकी आपके कॉन्वोल्यूशन लेयर में नहीं, डेंस लेयर में ऐसे जाएगा। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, डेंस में तो जाएगा, डेंस का भी मुझे पता है वो लेयर बाय लेयर स्टैक हुई भी है, लेकिन जब डेटा फीड होगा वो कितने डायमेंशंस में जाएगा, मैट्रिक फॉर्म में जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में टू मैं डायमेंशंस होती मैं है, या वही तो बता वेक्टर रहा फॉर्म हूँ, में जाएगा मैं जिसमें। वही तो बता रहा हूँ, जो जी। आपका वेक्टर डेंस में है ना, जाएंगे ना मैम। डेंस के अंदर वेक्टर में जाएगा और कॉन्वोल्यूशन के अंदर मैट्रिक्स में ओके जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। हो ही जाता है। तो जो आपने कल असाइनमेंट सॉल्व किया है वो आपने टू डायमेंशन में डेटा को फीड किया है, 2 डायमेंशन में किया है, मतलब वो आरएनएन पे था। हाँ हाँ, वो आरएनए में था। उसका डिपेंड करता है ना, अगर आप कौन उसको डेंस में कर रहे हैं तो 1D में होगा, अगर कौन 2D में है तो। लेकिन डेंस में तो नहीं करा ना सर, हमने डेंस में तो आखिर में करा, पहले जो हमने फीड करा तो वो तो हमने आरएनएन में किया था ना, सिंपल आरएनएन में। हाँ हाँ हाँ, सिंपल आरएन में आरएनए। 2 डायमेंशन में जाता है सर। जी। आरएन क्योंकि में सर मैंने पूरा अपना असाइनमेंट सॉल्व कर लिया था और मैं वहां फंस गई कि मुझे डेटा फीड कैसे करना है, मतलब वो मैट्रिक्स फॉर्म में करना है या मतलब वेक्टर फॉर्म में करना है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी उसमें, फिर मैंने आपका असाइनमेंट देखा तो भी मतलब मैं अभी भी कंफ्यूज ही थी। तो वो अब आपने बता दिया कि अगर डेंस में करेंगे तो दैट्स मीन वेक्टर में करेंगे, और कौन में करेंगे तो हम मैट्रिक्स में करेंगे। हाँ ओके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर।
तो ये इसका आप एज अ टेंसर आ गया इनपुट, ठीक है। उसके बाद और उसकी जो नेक्स्ट लेयर अपने ऐड की डेंस की, उसका इनपुट फिर ये पिछले वाली लेयर। तो ये आपका फंक्शनल इक्विवेलेंट जो है आपका, ये स्टेप बाय स्टेप आता है। तो उसके बाद आपका जो है, आप मॉडल क्लास यूज करते हैं इसके अंदर मिसाल में। तो मॉडल क्लास टर्न्स एन इनपुट टेंसर एंड आउटपुट टेंसर इनटू अ मॉडल। तो आप जब मॉडल क्लास जो यूज़ करेंगे टेंसर इसकी केरस की मॉडल क्लास, ये कैपिटल एम जो है ना, ये है इसका मॉडल क्लास, ठीक है। ये आपको ये देखें, ये आपको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगी, जैसे आप सीक्वेंशियल वगैरह इंपोर्ट करते हैं। तो मॉडल क्लास को इंपोर्ट करके फिर आप उस मॉडल में से जो है आप उसके इनपुट टेंसर और आउटपुट टेंसर यहाँ पे करेंगे। तो आपका आउटपुट टेंसर जो है, आउटपुट टेंसर क्या है, इज इक्वल टू लेयर्स डॉट डेंस। हाँ, ठीक है। आपका जो लाजिम बात है, ये वही चीज़ है ना, ये जो आपका सॉफ्ट मैक्स आखिरी लेयर थी ना आपकी, तो आखिरी लेयर आपकी आउटपुट लेयर है। तो आपका आउटपुट टेंसर जो है वो लेयर्स डॉट डेंस 10 आपके ये हो गए एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो सॉफ्ट मैक्स भला क्या करता है, सॉफ्ट मैक्स आपको 10 मतलब उसकी आउटपुट्स देता है, मतलब जितने आपने ये लगाए हैं यूनिट उतने आउटपुट्स देता है, ऐसे ही है ना। तो ये तो ये आपकी आउटपुट आ गई और ये आपकी इनपुट आ गई। आपका इनपुट टेंसर लेकिन और आउटपुट सर ये जो टेंसर। आप बता रहे हैं, मतलब ये जो हम्म। डेंस में, मतलब आप जो सिक्वेंशियल में कर रहे हैं, तो इसमें तो हम लेयर्स दे रहे हैं, लेकिन फंक्शनल एपीआई में तो हम लेयर्स नहीं दे रहे हैं। हम मतलब जो हमने इनपुट दिया है उसी को ही बार बार रिकॉल कर रहे हैं। असल में इसका मकसद ये होता है कि, मकसद हमने अभी पीछे पढ़ा है, इसका मकसद ये है कि अब यहाँ है ना, ये इस वाले को हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते और जगह पे, ठीक है। इस वाले को हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते इस वक्त, ठीक है। लेकिन इस वाले को हम किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं किसी और फंक्शन के नहीं साथ। सर, जैसे हमने पहले हमने जैसे दिया इनपुट टेंसर इज इक्वल टू इनपुट शेप 64, ठीक है। हम्म। फिर ये इक्वल हो गई इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू लेयर डॉट डेंस। अब ये आगे जो दे रहे हैं, जो इसको मिला रहा है, वो इनपुट टेंसर है, दैट्स मीन इनपुट टेंसर 64 यही डाल रहा है। हाँ 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 हाँ, वो यही है, ये चीज़ जो है आपने इनपुट टेंसर जो बनाया ना, वो यही होगा, ठीक है। लाजिम बात है, जब आप इसको इनपुट देंगे तो फिर कोई डाटा तो पास करेंगे ना इधर, तो वो वही इनपुट ही है जो यहाँ पे जा रही है। ये इनपुट शेप बताई है, ये इनपुट नहीं है, ये इनपुट शेप है। इनपुट हम यहाँ देंगे, ठीक है, जो कि इसको इसकी शेप के साथ मैच करना चाहिए बाद में, ठीक है। यानी कि जब हम इसको रियल डाटा पास कराएंगे यहाँ से, तो ये वाली इसके साथ शेप के साथ मैच करेगा तो फिर होगा, वरना नहीं होगा, ठीक। लेकिन सर वो गुजरेगा तो उसी में से ही ना, एट द एंड फिर यहाँ पर सॉर्ट होके निकलेगा। हाँ हाँ, वो गुजरना उसी में से है ना, लेकिन वो शेप उसके साथ मैच करेगी तो गुजरेगा ना, ये शेप बताया है ना इसको, ठीक है, ये मैं शेप यही बताया। तो कह रही हूँ, ये जो इनपुट टेंसर है ये बार बार हर स्टेप में रिपीट हो रहा है ना जी। यही शेप हर लेयर में रिपीट हो रही है। देखें, ये इसकी इनपुट यहाँ पे आ गई, उसके बाद इसकी जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट बनेगी। एक्स, वो एक्स हाँ निकला, वो इसकी इनपुट बन गई। तो हाँ। सर मतलब बेसिकली तो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आप, हेलो। इनपुट टेंसर को की आवाज नहीं आई सर, आवाज मेरा नेटवर्क जा खराब रही चल है रहा है। हेलो मैम, आपकी आवाज क्लियर है, टेस्टर के साथ इंटरनेट का मसला जी जी, क्या बोल रही हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम आपको। है। यस यस, क्लियर है सर की नहीं आ रही फिर? आ रही, मुझे आ रही है आवाज़। जी। ओके। हेलो। शौकत साहब आपकी भी आवाज आ रही है, आपकी अच्छा भी आवाज आ रही है शौकत साहब। ठीक है ठीक है।
सर क्वेश्चन बस ये है कि जो हमने फर्स्ट इनपुट टेंसर दिया है तो वो ही हर लेयर से गुजर कर एट द एंड में वो आउटपुट टेंसर में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है ना सर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। यस बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि इस असल में जो आपका आउटपुट टेंसर है ना, उसके अंदर सारा वो ये वाला फार्मूला मौजूद है ना। ठीक है, आउटपुट टेंसर के अंदर यहाँ से अगर बैक चले जाएं तो ये सारा कुछ आउटपुट टेंसर में मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन सारी। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको इनपुट देंगे अपना वेक्टर या जो भी है आपका टेंसर, जो भी आएगा इनपुट टेंसर, उसके बाद वो इनपुट पर टेंसर इसमें से इनमें यानी कि यहाँ से पास होगा ना, ये वाला इनपुट टेंसर यहाँ से पास होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है ना। ये अच्छा है। मुझे नमाज